Okay, so yesterday's class only we are continuing. So the questions which are given now, we are going to solve this Lagrange's form actually. Lagrange's form is nothing but this form, dx by p. Remember yesterday's class? Yes, dx by p Dx by p is plus dy equals to by q. dy by capital Q. Okay, na? Is equals ये to राशि dz dz by r r, r. capital R. dz by, can you see the screen now? Yes. Okay. So now our today's first problem. Solve the equation. Solve the The question we have not done yesterday, we are doing that question, sir. yes, वो कंटिन्यू हो, कल की क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ. तो लास्ट क्लास में अपने को खाली Okay. एक ही स्टेप लिखने का था. जी हाँ. हाँ, वो एक ही स्टेप था. अगर आपको शाम में इंस्टीट्यूट में भी पूछना है तो वो स्टेप एक पूछ लीजिए आप. वो एक ही स्टेप था. तो ये अब Okay. दूसरा प्रॉब्लम है. dx by y square, dx by y square, and here no need to write this. I will send it this one as a PDF. dy by x square is equal to dz by x square y square z square. अशरफ, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं. कुछ स्टेप समझाइए फिर से बोल के. अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही, अगर कोई साउंड का इश्यू है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी सेंड करिए, नो प्रॉब्लम. ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन है, देखिए सोल्यूशन. So already what happened here is auxiliary equation is already given. So we start our discussion with given dx by y square is equal to dy by x square is equal to, this is dz by x square y square z square. Okay. Sir, in question, it will mention that it is Lagrange's formula. Yeah, we have to assume it. नहीं, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता रहना चाहिए लेग्रांजेस फॉर्म का. अच्छा. ठीक है ना? ये स्टैंडर्ड फॉर्म से जो जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म है लेग्रांजेस फॉर्म का, वो स्टैंडर्ड फॉर्म को अपन सॉल्व करते हैं. ठीक है. तो कल मैं आपको बताया था कि कोई भी दो मतलब कॉम्बिनेशंस लेना है. मतलब क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहता था Lagrange's form. नहीं नहीं, ये लेग्रांजेस फॉर्म यहाँ पे लिख दिया ना मैं. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जी लेग्रांजेस. हाँ. स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्वेश्चन, ये फॉर्म में है, मतलब आपको लेग्रांजेस मेथड से इसको सॉल्व करना है. ठीक है ना? ओके. तो अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे. dx by p is equal to, it's dy by capital Q is equal to dz by capital R. So our question is in this form. So the method, which method? There are two methods I said. One is a grouping method, another one is a method of multipliers. Multiply. So you see which one is working here. If I am choosing first two terms, and if I am cross multiplying, x स्क्वायर के साथ dx आ जाता, y स्क्वायर के साथ dy आ जाता, मतलब आसानी से इंटीग्रेट हो जाता. So we choose first two terms here. So we'll write here equating first two equating first two fractions. So once if you equate first two fractions, what are those two fractions? dx by
y square is equal to, what is that? dy by, बोलिए, come on, I want the answer. X square, correct? dy by, yes, Now the next step is, if you cross multiply these two terms, what happened? What happened? X square x, dx, okay na, it is equal to x square dx, y square y dy. square dy. Now finally integrating, integrating, integrating. What's the integration of x square? You know that, tell me. X cube by It's 3. x cube by 3. It is equal to, that's the integration of y square is y cube by 3. Now if Y you cube take by 3. it, it will becomes minus, right? This is a constant Yes. add करेंगे अपन. That constant will be taken as plus some constant. That constant will be taken as c1. So if you take this side, x cube by 3 minus y cube by 3 is equal to c1, right? And 3 will be the LCM. So what do you say? X cube minus y cube by 3 is equal to c1. Okay. And one more step is possible here, which also implies that x cube minus y cube is equal to 3c1, 3c1, which is also equal to one of the solution. That is called it as A, right? One part is over. This is one of the solution. First two terms को अपन choose करें, we got one solution. Now next to two terms को देखेंगे अपन, कुछ possibility हो रहा क्या. Next to two terms को देखें तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, वाई स्क्वायर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई Y हो square जाता, z square. वाई स्क्वायर डिवाई हो जाता. फिर जेड स्क्वायर को क्या करेंगे? जेड स्क्वायर तो वहीं पे रह जाएगा ना, राइट? हो सकता है ना, जेड को जेड पावर -2, यस पॉसिबल है. तो देखिए क्या लिख रहे हैं भैया, अशरफ मत लिखो, अशरफ कुछ भी. एक मिनट, मैं दूसरा पेज चूज कर रहा हूँ अभी. ये हो गया इसका सोल्यूशन. ओके, अपन इसको ये बॉक्स पूरा सही कर देता हूँ. ये हो गया आपका फर्स्ट सोल्यूशन. अभी आपको दूसरा सोल्यूशन लिखना है, ठीक है? ये नेक्स्ट पेज में क्यों नहीं जा रहा है? चलिए, let us continuing this one. Moving to the second problem. Okay, so here I will be taking the second problem as, तो second problem है मेरा, ये second problem. So question is, solve
x dx by y square z is equal to dy by xz is equal to dz by y square. It is our question. So let us write the solution. सोल्यूशन में देखिए आप, स्टेप नंबर 1 क्या होता है आपका नॉर्मल गिवन x dx x by dx y square z by is y equals to square z is equal to dy by dy xz xz is is equal equals to dz by dz by y square. अभी क्या करेंगे? वही अपना जो लेग्रांजेस फॉर्म है ना, लेग्रांजेस फॉर्म में चला है dx by जी हाँ सर। हाँ यस. तो क्या करेंगे? इक्वेटिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शंस अगेन. फर्स्ट dx by t नीचे लिखेंगे सर, ये फॉर्म है अपन। हाँ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझने के लिए था. इक्वेटिंग ओके फर्स्ट, वो पहले क्वेश्चन में आपको डिटेल समझने के लिए उतना डीप में करेगा. इक्वेटिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शंस, ये क्वेश्चन भी सिंपल ही है. इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता. सो व्हाट इज दिस? इफ यू इक्वेट x dx by y square into z is equal to dy by xz. फर्स्ट टू टर्म्स आई एम इक्वेटिंग. प्रीवियस क्लास से कनेक्शन है देखिए इसका कंपलसरी. सो इफ यू सिंप्लीफाई व्हाट हैपेंड हियर, z with the z term cancel it and x multiply that side, that is cross multiplication, y square multiply that side. So we are getting x square dx is equal to what we are getting here, y square dy. करेक्ट है? dy करेक्ट है ना? यस तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाता ना. इंटीग्रेटिंग 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 x square integration is what? x cube by, बोलिए what is the x integration cube of by x 3 square? It's what? X cube by 3. This is x cube by 3. equals It is equal to, this is what? Y y cube square by 3 integration is y cube by 3. And some constant we are adding. That constant should be taken. That is equals plus C1. Right? let's see सॉरी मैं yes डायरेक्ट दूसरा क्वेश्चन कर दिया क्या? इसका सेकंड पार्ट लिए अपन. ओह आई एम सॉरी. अरे दूसरा क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर दी. ये फर्स्ट क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना चाहिए. इसके तो फर्स्ट टू फ्रैक्शन ही लिए अपन. इसके बाद अभी रिमेनिंग थोड़ा बाकी है ना, इसमें सेकंड टू फ्रैक्शन लेके करना है. एक ही पार्ट हुआ सोल्यूशन. ए खाली ए की वैल्यू है ना, बी की भी वैल्यू होना है ना. जी हाँ सर जी हाँ लेट अस फाइंड आउट बी आल्सो. यहाँ पे पहले इसको कंप्लीट करेंगे, इसके बाद ही अपन दूसरे क्वेश्चन को जा सकते. इक्वेटिंग 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 लास्ट टू टर्म्स या फिर लास्ट टू फ्रैक्शंस. लास्ट टू फ्रैक्शंस. equating last two fractions. So if you equate these last two fractions, we have here like that dy by x square is a first fraction, last second, or ये this is a last fraction, dz by x square y square and z square. What happened here is x square along with x square cancel, just y cancel multiply that side. खाली y square को उधर भेजाएंगे. Y square dy is equals to
यहाँ पे क्या बचे हुआ है देखिए, 1/z² इंटू डी जेड इज लेफ्ट आउट। ठीक है, खाली अपने को क्या करना रहता, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना रहता। मतलब वाई और डी वाई के टर्म्स एक साइड हो जाना, एक्स और डी एक्स के टर्म एक साइड हो जाना, यानी तो जेड और डी जेड के टर्म्स एक साइड हो जाना। उसको वेरिएबल सेपरेबल बोलते हैं, वो मेथड में लाके सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेटिंग मीन्स y² dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/z², 1/z²। So 1/z² dz. What's the integration of y square? We know that it is y³ by 3. That is y equal cube to by 3. integration of 1/z² is -1/z। इंटीग्रेशन के Z फॉर्मूले आपको पता रहना चाहिए। minus 1 by 3. ठीक है, और ये जो कांस्टेंट अपन पहले c1 ऐड करे थे, अभी इसको करेंगे c2 ऐड करेंगे। नाउ माइनस टेक दिस साइड, 2 दिस इज y³ by 3, y³ by 3 y प्लस cube by 3 1/z minus इसका प्लस प्लस वन बाई साइन जेड इज इक्वल टू 1 c2। by और इसको आप चाहे तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 3z एलसीएम। आप 3 थ्री से थ्री कैंसिल बोलते हो, z/3 इधर आ जाता, प्लस जेड से जेड कैंसिल बोलते हो, 3 इधर आ जाता, इज इक्वल टू c2। ठीक है, z/3 + 3। इसको एक और स्टेप अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाता, क्रॉस मल्टीप्लाई, और अपन इसको एक ले लेंगे नाम, एक b। तो ये आपका एक और सोल्यूशन आ गया। So therefore, we should write the complete solution is the complete solution solution A and is the complete solution is f of a comma b is equal to 0। f of, अपने को यहाँ पे से a की वैल्यू आई थी, क्या है नीचे देखिए, यहाँ पे देखिए a की वैल्यू x³ माइनस y³। ये कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, x³ माइनस y³। x cube minus y cube A की वैल्यू है और z y cube plus 3 by 3 तक B की वैल्यू यस, कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं, z/³ प्लस थ्री plus बाई 3 थ्री जेड by 3 है इक्वल टू 0। दैट्स योर कंप्लीट आंसर। complete ये solution. लिखने में आपको ज़रा पेजेस ऊपर नीचे हो गए। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। Yes sir. ठीक है ना, द पेजेस ऊपर नीचे हो गए तो मैनेज कर लीजिए आप। ये दूसरा वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है सेम वही, फ्रैक्शंस फॉर्म में है। तो इसका जो आंसर है, फर्स्ट पार्ट का आंसर अपने को ऑलमोस्ट आ गया था यहाँ पे। तो 3 एलसीएम है, इफ यू टेक दिस साइड एंड एट ए टाइम इफ यू टेक 3 इज एलसीएम, वी आर गेटिंग x³ माइनस y³। सिमिलरली इट इज इक्वल टू Minus y cube by 3c1, और 3 ये c1 इक्वल टू ए का वैल्यू, एक सोल्यूशन। equal to ए A का का वैल्यू वैल्यू मतलब एक सोल्यूशन आपको आ गया। ठीक है, सेकंड एक सोल्यूशन सॉल्यूशन आ गया। लाना है अब आपने को एक और दो टाइम सोल्यूशन को चाहिए। सेकंड और थर्ड दूसरे सोल्यूशन के लिए लास्ट टू फ्रैक्शंस को इक्वेट कर, यहाँ देखिए लास्ट टू फ्रैक्शंस क्या है, ये dy/xz। हाँ, आप चाहे तो मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ अलग कलर से। ये देखो ग्रीन काम कर रहा है। ओके, लास्ट टू फ्रैक्शंस, लास्ट टू फ्रैक्शंस। So last two fractions if I am taking, so what happened here is dy by xz is equal to dz by
वाई स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वाई के साथ में इन्हें उधर चले जाएंगे, वाई स्क्वायर जेड। अच्छा, फर्स्ट क्या, फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन। इसमें देखिए अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये वाई स्क्वायर से डी वाई चल जा रहा, एक्स डी जेड, मगर यहाँ पे एक्स्ट्रा भी हो जा रहा, मतलब ये काम नहीं करेगा, ये कॉम्बिनेशन आपको काम नहीं करेगा। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन अपना वर्क नहीं करेगा। तो क्या करेंगे, फर्स्ट फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को लेंगे। ठीक है, ओके। फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को लेंगे। सो टेकिंग टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन, टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन। तो फर्स्ट फ्रैक्शन में यहाँ पे अपने को एक्स डी एक्स बाई वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल टू डी जेड बाई वाई स्क्वायर। एक यहाँ से वाई स्क्वायर और यहाँ से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाता, एक्स डी एक्स तो पहले से वहाँ पे है ही, जेड को उधर भिजा देंगे तो ये बन जाता आपको क्या, जेड डी जेड। अब आसानी से ये इंटीग्रेट हो जाता, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग, तो एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर बाई टू, और जेड का इंटीग्रेशन यहाँ सर पे ये आप 7 मार्क्स के, क्या बोले, 7 मार्क्स के नहीं, 7 अभी मार्क्स का प्रॉब्लम। 7 मार्क्स आप नेक्स्ट इसके बाद वाला बताओ। ये 2 मार्क्स का है। हाँ तो सिंपल ही है ना, इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है ना। हाँ सिंपल है। वो कल का पीडीएफ फॉर्म का जरा थोड़ा वो था। हाँ, अब इसको फाइनली अपन एक सोल्यूशन के फॉर्मेट में लिखे तो क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2c2 इज इक्वल टू बी। ये हो गया आपका एक और सोल्यूशन। सो क्या लिखना है आपको, कंप्लीट द कंप्लीट सोल्यूशन इज, कैसा होता बोलिए, एफ ऑफ ए कामा बी इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ ए इज हियर एक्स क्यूब माइनस माइनस वाई क्यूब, वाई क्यूब कामा बी की वैल्यू क्या कॉमा आई, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस स्क्वायर जेड स्क्वायर, माइनस जेड स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया खत्म। अब एक क्वेश्चन जो लेंगे अपन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला लेंगे। दो पेज में आप, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एलएक्यू हो सकता है, देखिए तो बड़ा भी है। सॉल्व सॉल्व dx बाई वाई माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू dy बाई dy बाई वाई जेड प्लस एक्स, वाई जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ मूविंग टू फाइंड द सोल्यूशन, जस्ट एक कॉल आ रहा हमको, एक मिनट।
हेलो, वालेकुम सलाम। अच्छी बात, ठीक है। ओके। तो लैग्रेंजेस फॉर्म में है ही नहीं, पहले तो वो बोलिए, है या नहीं है? हेलो। है सर। है हेलो, ना? है सर। तो अब आप उसको अपन लैग्रेंजेस फॉर्म से कंपेयर भी करके आपको पी क्यू आर की वैल्यू बता दूंगा मैं आपको। ये एल ए क्यू है, डी एक्स बाई वाई माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई वाई जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई। क्या है अपना स्टैंडर्ड फॉर्म? जरा याद करने के लिए एक बार कर लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है अपना? बोलिए। डी एक्स बाई dx बाई टी इज इक्वल टू dt डी is वाई बाई equals to dy by क्यू इज इक्वल q टू डी जेड बाई dz by r. आर। दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म। आवर क्वेश्चन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म नाउ। ठीक है। व्हाट्स द पी हियर इफ यू कंपेयर y minus zx? What is q here? Come on. yz plus x. yz plus x What is r here? x x square. Plus y square. So after getting p q r value, अब देखेंगे अपन ग्रुपिंग मेथड काम कर रहा है यहाँ पे। देखिए आप क्वेश्चन में देखिए, ग्रुपिंग मेथड मतलब ये फर्स्ट टू टर्म्स को अगर अपन ले लिए और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कुछ कैंसिलेशन तो नहीं हो रहा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो भी y के साथ z आ जा रहा, z के साथ x आ जा रहा, मतलब ग्रुपिंग काम नहीं कर रहा। फर्स्ट टू मेथड्स में भी देख लिए, सेकेंड टू मेथड्स में भी देख लिए, फर्स्ट और लास्ट में भी देख लिए, grouping is not working here. So we are applying Lagrange's multiplier. Okay, method of multipliers यूज कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करना है, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो उसकी बेसिक है, वो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। उसका जो फॉर्मूला है मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स का, वो देखिए यहाँ पे एक बार रिवीजन के तौर पे आपको बता दे रहा हूँ। ये है मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स अपना, डी एक्स बाई पी। कल की क्लास में बताया था ऑलरेडी, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। डी वाई बाई क्यू इज इक्वल टू dz by r. dz by r, we have to choose the multipliers in this way. सपोज अगर अपन एलिमेंट मल्टीप्लायर चूज करें तो ये फार्मूला है एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड। कल की क्लास की रिकॉर्डिंग सेंड करा मैं, Yes sir. देख लीजिए। उसके अंदर ये मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स किस तरह से करें अपन, उसमें बताया। एल पी प्लस एम क्यू lq प्लस plus lr. एन आर। अब अपने को नॉट क्यू, दिस नॉट स्मॉल क्यू, इट इज कैपिटल क्यू प्लस एन आर। तो अपने को क्या करना है ऐसे मल्टीप्लायर चूज करना है जिसमें ये डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो हो जाना। ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लायर कैसे चूज करेंगे। अब ये डिनोमिनेटर को जीरो बनाने के लिए अगर मैं इसको पूरा को रफ कॉलम में करके चूज करा, मल्टीप्लायर्स यहाँ पे है एल, अगर एक्स से मल्टीप्लाई करना है, और ये मल्टीप्लायर्स अपन अपनी मर्जी से चूज करना है। कैसे चूज करना है, डिनोमिनेटर जीरो बन जाना, ऐसे चूज करना है। ये एन इज इक्वल टू जेड। अब देखिए ये जो टर्म्स है ना, वाई माइनस जेड एक्स, उसको एक्स से मल्टीप्लाई करना है। ये वाई जेड प्लस एक्स को माइनस वाई से, और इसको जेड से मल्टीप्लाई करे तो फ्रैक्शन क्या हो जा रहा, जीरो हो जा रहा। अब एक बार करके बता दे। देखिए, दिस मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में क्वेश्चन हो जाना इंशाल्लाह। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। एल की वैल्यू माइनस एक्स, एल की वैल्यू नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स डी एक्स। एम वैल्यू क्या लिए बोलिए, माइनस वाई डी वाई
बोलो, आप लोगों को पता है ना, ऊपर लिख भी दिया मैं, एन की वैल्यू क्या ले रहे हैं अपन, जेड डिजेड, माइनस वाई डी है। है ना। एलिमेंट यस यस सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, ये चौथा फ्रैक्शन जो इसमें है ना, फोर्थ फ्रैक्शन में एलिमेंट सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। हाँ, एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू एक्स है, इंटू पी वैल्यू वी नो दैट वाई माइनस जेड एक्स, राइट। और एम की वैल्यू क्या है, माइनस वाई इंटू क्यू इज वाई जेड प्लस एक्स, प्लस एन की वैल्यू कितनी है, जेड है, और इसके साथ में आर वैल्यू इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देखिए डिनोमिनेटर को देखिए, नॉट न्यूमिनेटर, जस्ट लुक एट द डिनोमिनेटर, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, जेड डी जेड, denominator is multiply what happened, xy and minus x z square, and here multiply minus y square of z, ये हो गया माइनस एक्स वाई, इसको मल्टीप्लाई करिए, एक्स जेड स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर, तो लुक एट हाउ मेनी टर्म्स आर कैंसिल, जेड वाई स्क्वायर का कॉम्बिनेशन किधर से कैंसिल हो जाए, जेड वाई स्क्वायर, एक्स वाई पहला टर्म आ गया, एक्स जेड स्क्वायर आ गया, माइनस जेड वाई स्क्वायर आ गया, माइनस एक्स वाई आ गया, प्लस सिक्स। तो अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई से प्लस एक्स वाई से माइनस एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, होता नहीं होता, आयमा बंदी रहने दो, होता आयमा है। बंदी चलन दो, एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल हो गया, माइनस ये दोनों भी कैंसिल हो जा रहे हैं, और ये दोनों भी कैंसिल हो जा रहे हैं, आप देख सकते हैं क्या हो जा रहा है, डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो हो रही कि नहीं हो रही, जीरो। एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, जेड डी जेड, वो एमन नहीं है क्या आज, डिनोमिनेटर जीरो हो जा रहा ना, फोर्थ फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जीरो हो रहा नहीं हो रहा। यस है। अच्छा, ये फोर्थ फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को आप यहाँ से किसी भी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर लो, जीरो क्रॉस मल्टीप्लाई विथ एनीथिंग, यू विल गेट द आंसर जीरो। यहाँ पे ये साइड देखो पहले से क्या है, यहाँ पे जीरो। डी एक्स बाई पी, पी की वैल्यू अपने पास क्या है, वाई माइनस जेड एक्स है, इज इक्वल टू डी वाई बाई क्यू, क्यू की वैल्यू अपने पास वाई जेड प्लस एक्स, वाई जेड प्लस इज इक्वल टू डी जेड बाई, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ आर वी हैव, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर। प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं क्या बोला अभी आपको, अब ये लास्ट फ्रैक्शन को कॉम्बिनेशन किसी के साथ भी ले लो आप, किसी के साथ भी लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक फ्रैक्शन ऐसा है 2/5, और यहाँ पे आपके पास है x/0, तो जैसे ही अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐसा टर्म जीरो हो जीरो जाएगा। इंटू एनीथिंग जीरो, मतलब खाली अपने को x बच जाता ना, जी आओ। एक्स जीरो इज फाइव। इक्वल टू 5x ऐसा आता, 5 विल ऑल्सो गो दैट साइड, जीरो। मीन्स एक्स वैल्यू विल बी जीरो, मतलब यहाँ पे अपने को क्या मिलेंगे, यस। दिस इंप्लाइज दैट जीरो। एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड प्लस जेड डी जेड, दैट आंसर विल बी इक्वल टू जीरो। क्या करना है अपने को, कौन सा मेथड कर रहे हैं हमें, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स में क्या रहता है, एलिमेंट ऐसा चूज करना, जैसे चूज करने के बाद में वो जो फ्रैक्शन आ रहा डिनोमिनेटर, वो क्या बन जाना हो, वो जीरो बन जाना, ऐसे जीरो बन एलिमेंट जाना। फैक्टर्स को अपने को चूज करना है, ठीक है। क्वेश्चन में से चूज करना जी हाँ, तो अब आपको आ गया ये क्या हो गया, है। जी हाँ सर, एकदम 100% है। यस, तो वी गॉट दिस वैल्यू एज जीरो, नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। हाँ, तो ये आ गया आपको, अब लास्ट में इसको इंटीग्रेटिंग करिए, सॉल्व कर दीजिए, खत्म करिए, इंटीग्रेटिंग
Integrating. What is the integration of x? X square by 2 square by 2 minus integration of y y square by square 2 by 2 integration of z square by z 2 square by 2 z square by 2 is equal to, we are adding some constant या फिर 0 c कुछ तो भी आप एक c कांस्टेंट ऐड value कर लीजिए आप, और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसके plus साथ में c1 बजा दीजिए। c1 ले लो या c1 ले लो, आपकी मर्जी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर y प्लस square जेड स्क्वायर plus इज x इक्वल टू square 2c1, और इसको अपन क्या नाम दे रहे हैं? एक सोल्यूशन आ गया बोल के अपन अज्यूम कर, दिस इज आवर वन ऑफ द सोल्यूशन। कौन से मेथड से करें? मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से। multiply एक और सोल्यूशन होना है ना अपने को, 3 मिनट से ये अभी करके खत्म करेंगे। तो लेट अस अज्यूम अनदर फ्रैक्शन, अनदर मल्टीप्लायर्स, वी हैव टू सर्च अनदर मल्टीप्लायर्स। तो जो और एक मल्टीप्लायर्स आ रहे हैं वो ऐसा लेना है, L इज इक्वल टू वाई, M इज इक्वल टू एक्स, और N इज इक्वल टू माइनस वन। ये फ्रैक्शन minus z सब्सटीट्यूट कर रही है यहाँ पे जैसा अभी करें ना, डिनोमिनेटर को जीरो बनाने के लिए वो फैक्टर्स को ले रहा है। नाउ विल टेक इट एंड सब्सटीट्यूट एंड फिनिश दिस वर्क। तो ये हो जाता, देखिए एल डी एक्स है फार्मूले में, तो एल की वैल्यू तो वाई आ गई, तो फिर वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, बिकॉज एम इज एक्स हियर, एक्स डी वाई, और हियर एन इज माइनस वन, बोल तो माइनस डी जेड बाई डिनोमिनेटर। ये यहाँ पे ये साइड वही से देखिए, डी एक्स बाई पी इज इक्वल्स टू डी वाई बाई क्यू। मैं पी क्यू आर की वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि शॉर्टकट में ही लिख रहा हूँ, टी जेड बाई कैपिटल आर। और डिनोमिनेटर में फिर सिंप्लीफाई, इसको y से मल्टीप्लाई करना है p वाले को। p क्या है अपने पास? y माइनस एक्स जेड है, ठीक है, प्लस q वैल्यू अपन m वैल्यू कितना लिए? x लिए, x इंटू वाई जेड प्लस एक्स, और n की वैल्यू कितना लिए अपन? माइनस वन, तो ये माइनस से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। square plus y square yes sir अब ये देखिए डिनोमिनेटर जीरो आ जाता, फिर जस्ट इंटीग्रेट कर दिए तो बात खत्म हो जाती। तो लेट अस फिनिश इट नाउ, टाइम कम है इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। कर दे सकते वाई डी सर एक्स, शॉर्टकट आ गया हाँ यस, प्लस एक्स डी वाई माइनस जेड, डिनोमिनेटर वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स y square minus z प्लस x एक्स plus वाई जेड, x square एक्स वाई yes जेड प्लस एक्स स्क्वायर yes माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे भी ना जेड एक्स वाई आ जाता, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते, ये दोनों कैंसिल हो जाते, ये दोनों भी कैंसिल हो जाते। डिनोमिनेटर cancel हो गया वाई 0 हो जाता डी एक्स y dx प्लस plus एक्स डी वाई x dy minus z माइनस जेड है या डी जेड by होना है? 0 या डी जेड होना ना जी, हाँ डी dz था जेड माइनस डी जेड y minus बाई dz डिनोमिनेटर is आ equal जा रहा है इसका क्या? जीरो आ जा रहा है, to ठीक है। अब 0 आ डिनोमिनेटर जाता जीरो आता है, जीरो से आप इसको भी कोई भी टर्म को जीरो बना सकते हैं, तो देयर फोर वाई डी एक्स जी हाँ y is प्लस एक्स डी x वाई plus x dy माइनस minus डी dz जेड is equal to 0 इज इक्वल टू जीरो। इसको अपन चाहे तो ना वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई को डी ऑफ एक्स कामा वाई फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको एक्सपांड करें तो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई फार्मूला है डी ऑफ एक्स कामा वाई का माइनस डी जेड इक्वल टू जीरो। अब इसको जस्ट इंटीग्रेटिंग कर देंगे, इंटीग्रेटिंग integrating derivative and integration will be cancelled, so we have left